Hi class 10th. Let's start science lecture. Last lecture कैसा लगा आपको? मस्त ना? Okay. Let's continue the same topics. Topic का नाम क्या है? Gravitation. तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे. Okay. फुल चैप्टर्स रिविजन्स पूरा होगा. Welcome to here. I'm Anand sir. My WhatsApp number or for any queries you can call me 8600574741 or WhatsApp it's subject. Today's subject is science 1 part 1, science part 1, that is the science and technology. Welcome to our Anand coaching classes. Okay, now let's start without wasting the time. Let's start the lecture. Today's lecture, gravitation. Gravity. Gravity means the property of force of attraction of the bodies is called gravitation. Newton's law of gravitation, Newton's inverse law of gravitation. He says that every object is attracted to every other object with the force of attraction, which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. That we learned the last lecture. Also, we learned the center of mass topic and why the high tides and low tides are causes there. I explained the moon is attracting towards the earth. Moon is on the side of the earth. That time there is a attraction. There is a high tide causes because and exactly opposite side there is also high tide causes. This I explained with a base example right now, and I think that's all of you understand it. And now I continue to the this lecture number 2 by heading to me now. See, in last lecture we know that force of attraction, Newton's law, inverse law of gravitation. According to this, force is equal to G into m1 into m2 upon r square, right? Where D is equal to here r. In last lecture we learned F is equal to G m1 into m2 upon क्या था वहां पे d square था, लेकिन यहाँ पे क्या r है. R means distance of the sphere of the body, spherical body from the center, यानी कि वो क्या होगा, इसका रेडियस बनेगा. क्या बनेगा? रेडियस या डिस्टेंस ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर टू द ऑब्जेक्ट. ऐसा अर्थ है और मून है. अर्थ से लेकर अर्थ का सेंटर और मून का सेंटर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज व्हाट? आर. क्या रहेगा? आर. या टू बॉडीज लास्ट लेक्चर में देखा तो वहां पे दो बॉडीज का जो सेंटर ले रहा है, सेंटर से जो डिस्टेंस था वो क्या? डी था, लेकिन डी के बदले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं आर. वन मोर फॉर्मूला फॉर द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन. In last lecture 9th standard you learned that v is equal to u plus at. What is kinematic equation? क्या है ये? These are the kinematic, first kinematic equation. V is equal to u plus at. Here v is a final velocity, u is a initial velocity, is acceleration, t is a time. Okay, and s is equal to ut plus half at square, second kinematic equation. And third kinematic equation, v square is equal to u square plus what is the 2as. These are three equations we learned in last standard. First equation, second equation, first kinematic equation, second kinematic equation, and what is the third kinematic equation? First is v is equal to u plus at. Second is s is equal to ut plus half at square. Second, third is v square is equal to u square plus 2s. Let's remember some basic concept. Law of indices that also explained last lecture, that is a square that is a raised to m raised to n. According to this rule, a raised to m raised to n is a raised to m into n. मल्टीप्लाई करना वहां पे 2 3 कितना हो गया 6. a raised to 2 है, a raised to 3 है, तो इनका यहाँ पे एडिंग होगा. a raised to 2 plus what 3 is equal to 5. Do you know this? Understand? Okay, good boys, good girls. All of you good students, talented है, आप होशियार है, scholar है. Okay, let's remember some basics. And final answer. See here, F is equal to 0.345 10 to minus 11 Newton.
दैट इज इस नंबर, यहाँ पे देखो ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको 0.0.345, दिस नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। ये डेसिमल में है, दैट इज 0.345 इज लेस देन 1, सो कन्वर्ट इनटू व्हाट इज 1 to 10, दैट इज यू हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल फ्रॉम 3 टू बिटवीन, यहाँ पे लेंगे तो 34 होगा, ग्रेटर देन 10 होगा, तो यहाँ पे डेसिमल लेना पड़ेगा। अब एक डेसिमल फॉरवर्ड लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर भी क्या होगा माइनस, व्हेन यू मूविंग व्हाट राइट साइड, देन सबस्ट्रैक्ट टू द पावर ऑफ द 10 -1, जितना प्लेस जाएंगे उतना आपको प्लेस नंबर क्या करना पड़ेगा माइनस। 2 डिजिट आप आगे जाएंगे तो 2 -2, 3 डिजिट ये बैक जाएंगे तो वहाँ पे -3, 4 डिजिट जाएंगे तो -4 होगा, लेकिन फॉरवर्ड जाएंगे तो क्या होगा प्लस। ओके, अंडरस्टैंड दिस, अप्लाइंग दिस। Value should be what is the between 1 and what is the 10. Case number 1, example is here, 0.345 10 is to -11 is less than move decimal point here one step to the right. What is the one step right? That is, it should be written as when you're moving that and subtract here 1. Already I explained you. And so 3.45 10 is to -11 -1 is a 10 is to what -12. 3.45 into 10 is to -12. Case number 2 is here, 34.5 into 10 is to -11. So this number also is greater than 10. So more decimal forward, that is between 3 and 4. So here add +1, move decimal point one step to the left, that is add 1. So by adding here 3.45 into 10 is to -11 plus 1, that is a 3.45 and 10 is to -10 न्यूटन बनेगा, राइट। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यार, ये बहुत जरूरी है, तो आपको आगे के एग्जाम्पल समझ में आने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव दिस बेसिक्स, ये आपको बेसिक है, तो बाद में बताएंगे ये कैसा आया सर, वो कैसा हो गया। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। करेक्ट द फॉलोइंग्स, दिस फॉर यू, ओपन योर नोटबुक्स एंड करेक्ट इट फास्ट। ऑल ऑफ यू स्टार्ट टू सॉल्व दिस इन नोटबुक यूर। ओके, करेक्ट आंसर आपका चेक करो, नेक्स्ट वन सॉल्व इट, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व, देन चेक द आंसर, आपका करेक्ट आंसर है क्या नहीं है, आपको समझ में आया क्या नहीं आया, तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये आंसर चेक करो, 0.196 लेस देन व्हाट इज द 1, सो डेसिमल प्लेस आपको क्या करना है राइट साइड लेना है, तो ऊपर क्या होगा -1, दैट इज 34 का कितना होगा 33, 1.96 into 10 raised to what 33। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन 0.34 10 raised to -7, यहाँ पे भी प्लेस फॉरवर्ड जाएगा, मीन्स टुवर्ड्स द राइट, दैट इज 10 raised to -7 का -1 -8 होने वाला है। 3.4 into 10 raised to -8. Okay, is it right? Now here look at 0.05. So your decimal must be your 2 place forward, 2 place right side. That is the 5.33 into 10 raised to -7 -2 is 10 raised to -9. Okay, got it? नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट करना, चेक करो। देन नेक्स्ट ईयर 500 दिया है, तो आपको डेसिमल प्लेस क्या करना, 1 2 प्लेस फॉरवर्ड लेना है, मीन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, मीन्स यहाँ पे क्या होगा +2, -3 + 2 इज -1, मीन्स 5.0027 into 10 raised to -1। ओके, समझ में आया सबको अच्छे से, क्लियर है ना। तो अभी हम बेस एग्जांपल देखने वाले हैं, जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट। महेंद्र सिंह धोनी, ग्रेट इंडियन कैप्टन, successful captain Virat, great Indian batsman as well as today's captain। टुडे इंडियन टीम का टेस्ट हो या वनडे हो कोई भी हो, तो उसमें कैप्टन कौन है अभी, विराट कोहली। ये दो पर्सन का हम एग्जांपल लिया। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट डिस्टेंस 1 meter फ्रॉम ईच अदर, their masses are 75 kilogram 80 kilogram respectively, what is that gravitational force between them। ये हमें इनके फोर्स के बीच में फोर्स क्या है, ये आप और आपका फ्रेंड है, दोनों के बीच में फोर्स क्या है, why you are attracting to each other, why you are not attracting to each other। Newton's law says that every body is attracted to every other body,
तो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। बॉडी कोई भी हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो अट्रैक्ट करती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको देने वाला हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू गिव दिस एक्सप्लेन टू नाउ दिस। आपको एक नहीं होगा व्हाई यू आर नॉट अट्रैक्टिंग, न्यूटन ने बोला है तो भी अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, इसका आपको अभी अंदाजा आएगा। ये आ गए महेंद्र सिंह धोनी एंड व्हाट विराट कोहली, बोथ आर इंडियंस। अब इंडिया के बहुत अच्छे से खेलने वाले क्रिकेटर्स हैं, महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट। दोनों बैठे हैं, दोनों एक दूसरे को टीजिंग कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं। बॉडी देखो, स्टील बॉडी है विराट कोहली की। यहाँ पे 75 kg, 1 मीटर इनका डिस्टेंस है दोनों में। सोशल डिस्टेंस, क्या है, सोशल डिस्टेंस बनाए इन्होंने कोरोना रोकने के लिए। इसका 75, इसका क्या होगा 80। घर में बैठ बैठ के अभी इसका एक्सरसाइज कम हो गया, इसलिए इसका 80 kg वेट बढ़ गया अभी। इसका कितना 75 kg, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा लगता है, कम किया। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, क्या फोर्स रहेगा वो, हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने वाले। न्यूटन लॉ क्या है, F इक्वल जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। तो गिवन यहाँ पे है m1 इज इक्वल टू मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर, mass of the first body here 75 kg, mass of second body is 80 kg, and given 6 g is equal to 6.67 10 is to minus 11 newton meter square per kg square. That I explained last lecture how this new unit is got to the g, and g is value is a universal constant. Why is a constant, that I also explained. मालूम नहीं होगा तो जो पहले वाला वीडियो है उसको आप देख लेना जरूर and understand it's okay, clear it's। अब दोनों को हटाता हूं मैं, और यहाँ पे हम सम सॉल्व करने वाले हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो वेरी केयरफुली सीरीज टू फाइंड, क्या करना, फाइंड करना है आपको फोर्स। किनके बीच में फोर्स, दोनों के बीच में। किसके, विराट और क्या, महेंद्र। दोनों का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। व्हाट इज द वेट ऑफ द धोनी 75 kg। व्हाट इज वेट ऑफ द कोहली 80 kg। विराट इज 80 kg। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स इक्वल m इंटू ए भी है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया है, मास दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, दोनों फॉर्मूला, लेकिन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे गिवन क्या, देखो ये वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू किसमें, इसमें है, यहाँ पे क्या नहीं है। सो अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, फॉर्मूला हियर F is equal G m1 m2 upon r square. Now substitute the value of this. F is equal to value of the G is 6.67 10 to minus 11. m1 is equal to 75 kg, m2 is equal to 80 kg upon r square is a 1 square. Now simplifying, देखो यहाँ पे 6000 हो गया, कैसे हो गया 6000, देखो 75 इंटू 80 मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6000। 6000 मीन्स 6 इंटू क्या हो गया 10⁻3, यानी कि ये जो नंबर था, नंबर मैंने क्या किया, इसको 1 to 10 के बीच में लाया। कितना प्लेस लिया, यहाँ पे 6000 था, 6000 का क्या किया 3 प्लेस आगे लिया, तो 6 इंटू 10 कितना हो गया 3, 10⁻3 मीन्स 1000, 1000 इंटू 6 6000। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ओके। 6.61 10 to minus 11 और 10 to minus 3, इनका a रेज टू m, इसलिए इंडेक्स का आपको मैंने बेसिक पढ़ा था, 10 to a रेज टू m इंटू a रेज टू n, क्या होता है a रेज टू m माइनस n, यानी माइनस m प्लस n, माइनस 11 प्लस 3 कितना होता है 8, माइनस 8 अपॉन 1 स्क्वायर इज 1, 6.67 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 40.02। चेक 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 इन नोटबुक की बार, सॉल्व मल्टीप्लाई। नाउ 40 इंटू 10 to minus 8, इज इट करेक्ट नंबर, ये नंबर करेक्ट है क्या 40, देखो यहाँ पे 40 जो नंबर है इज लाइज बिटवीन 1 to 10, नो, इज इट्स नो। सो कन्वर्ट डेसिमल यहाँ पे, तो आपको कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना पड़ेगा, 1 प्लेस लेफ्ट, 1 प्लेस लेफ्ट मीन्स यहाँ पे क्या होगा +1, यहाँ पे क्या होगा +1, तो 4.002 इंटू 10 to minus 7 इज द करेक्ट आंसर। और ये फोर्स देखो 4.002 10 to minus 7 का मतलब क्या हो गया, 4 के आगे डेसिमल देंगे तो 0.70, उसके बाद 4002, दैट फोर्स इज वेरी वेरी लेस। तो अट्रैक्ट करेगा क्या वो, महेंद्र विराट को अट्रैक्ट करेगा क्या, या विराट का वेट ज्यादा है वो अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं। अभी अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स कितना चाहिए तो वो हम चेक करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, ओके।
The gravitational force between Mahendra and Virat is 4.002 × 10⁻⁷. This force is very very less to attract to Mahendra and what is Virat. Next here mass of the Earth and Moon. इसका हम सॉल्व करेंगे. इनका जो फोर्स है वो फाइंड करने वाले हैं. This our Earth and is a Moon. 6.1024 is the mass of the Earth and mass of Moon is 7.4 × 10⁻22 kg. किसका ज्यादा है? Earth का ज्यादा है. Now distance between them is 3.84 × 10⁵ किलोमीटर. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3.84 × 10⁵ किलोमीटर. फोर्स इसके बीच में फाइंड करना है. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F is equal to G into M1 into M2 upon R square. That is M1 6.10⁻24, M2 is 7.4 × 10⁻24 kg. इनका मास लिया. R कितना है? 3.84 10⁵. अभी यहाँ पे जो R है 10⁵ किलोमीटर था. किलोमीटर का क्या किया मैंने? मीटर में कन्वर्ट किया. किलोमीटर into meter, that is a multiply by 1000. 1000 means what? 10⁻3. 1000 means 10⁻3. That is a 10⁵ into 10⁻3 कितना होता है? 10⁸. इंडाइसेस का फॉर्मूला अप्लाई किया. स्टार्टिंग में मैंने बेसिक आपको क्लियर किया है. सो यू मस्ट बी नो दिस गाइस. सी वैल्यू कांस्टेंट है. टू फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड अर्थ, F इज इक्वल टू फाइंड करना है. तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. राइट. नेक्स्ट F इज इक्वल टू फॉर्मूला F इज इक्वल टू G M1 M2 M2 अपॉन R स्क्वायर एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू टू फाइंड आंसर. वैल्यू पुट करो यहाँ पे. ऊपर से वैल्यू पुट करो. चलो 6.61 × 10⁻² -11 6 × 10⁻24 मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ मून 7.4 × 10⁻22 अपॉन radius is a 3.84 × 10⁸². distance between their world center. now ये जो नीचे नंबर है स्क्वायर कंप्लीट कर दिया. स्क्वायर करना मतलब यहाँ पे देखो स्क्वायर कैसा हो गया? 3.84 का स्क्वायर और 10⁸ का स्क्वायर. 10⁸ का स्क्वायर मतलब 8 × 2 कितना हो गया? 16. ओके, अभी 6.7 6 और 7.4 ये नंबर मल्टीप्लाई होगा. 10⁻−11 10⁻22 ये प्लस है माइनस है. तो 22 - 11 क्या होगा? 11. वो क्या होगा? पॉजिटिव. ओके, नाउ सी दैट इज ये नंबर सब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. और नीचे का 16 है, ऊपर क्या होगा? 11. ये पूरा सॉल्व होगा. देखो ये नीचे प्लस है, ऊपर क्या होगा? माइनस. पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे -11 24 + 22 -16. दैट इज सॉल्व करेंगे कितना होगा? 10⁻19 आएगा. सो डायरेक्टली राइट हियर 10⁻19. आपको ये डायरेक्टली आपकी बुक में ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. तो वीडियो आपको वापस पॉज करके बैक करके आपको देख सकते हो. नाउ सिंप्लीफाइंग this value we got here 29748. each number look at 297 is approximately nearly equal to 300. तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 300 इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया. होल नंबर. क्यों ऐसा 14.74 किया? 15 बना दिया. क्योंकि ये मुझे सिंप्लीफाई करना है या एजी कन्वर्जन करने के लिए, एजी डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे? अप्रोक्सीमेट नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट करके लिया है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको यहाँ पे एक्चुअली फोर्स निकालना है, जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा तो भी चलेगा. ओके, 20 × 10⁻19 आ गया. तो ये फोर्स देखो कितना है, और दोनों के बीच में कितना फोर्स था वो देखो. 10⁻7 में था, ये प्लस में है. यानी ये फोर्स कैसा है? दिस फोर्स मच मोर ग्रेटर देन द. और तो भी मून अट्रैक्ट हो रहा है क्या? अपने एक पाथ में रिवॉल्व हो रहा है वो. राइट. Do you understand? The gravitational force of attraction between the Earth and Moon is 10⁻2 × 10⁻20 Newton. Much more greater here. That's a moon अपना पाथ छोड़ के जाएगा नहीं. Earth उसको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है towards it with the force 2 × 10⁻20. ये है gravitational force. The mass of Earth, distance between the Earth and Sun is 1.5 10⁻11. If gravitational force between them is there 3.4 × 10⁻22 Newton. What is the mass of the sun? अभी सन का मास कितना होगा? सन के बारे में भी जानने का है. आप यहाँ पे बैठ के आपके सन का मास निकाल सकते हो. अभी ये मास कैसा निकालने का देखो. M1 is the mass of this. डिस्टेंस का 1.5 × 10⁻11 मीटर है. राइट. फोर्स कितना दिया? 3.5 × 10⁻22 दिया है. अभी ये वैल्यू मास हमें फाइंड करना है, तो आपका फॉर्मूला सेम रहेगा. ये गिवन है. ना फॉर्मूला
फर्स्ट वाला यहाँ पे वैल्यू पुट करो जो आपको नॉन वैल्यू है, जी वैल्यू एफ आर स्क्वायर, हमें मास m2 निकालना है तो आर स्क्वायर क्या होता डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, जी m1 जी एन m1 is a multiply into a divide, so m2 is equal to f r square upon g m1. So put the value of f r g m1 by putting the value 3.5 10 to 22 1.5 into 10 to 11 square, g value is 6.7 into 10 to minus 11, 6 into 10 24, ये सिंप्लीफाई हो गया आपको, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया 1.5 स्क्वायर 2.25 10 to 11 स्क्वायर इज 10 to 22. ओके, ये सब में एग्जांपल है, थोड़ा समय फास्ट ले रहा हूं आपको, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अपोज का 10 का पावर का 1 2 3 4 ये नंबर है, ये 22 ये माइनस चलूंगा प्लस हो गया, 24 प्लस है ऊपर माइनस हो गया. सो यू गॉट दिस वैल्यू 7.875 अपॉन 40.2 और ये पूरा सिंप्लीफाई करके मिला आपको 10:31, राइट. अभी ये आपको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने तो कर सकते हो, दैट इज 7.875 अपॉन 40.2 का कितना दिया 40. टू सिंप्लीफाई इजीली, यहाँ पे 0 है मतलब 10 हो सकता है, या 31 का आपको यहाँ पे 30 कर सकते हो. कैंसिलेशन किया कितना आ गया 1.575 इंटू 1031, ये भी आप कैंसिल करेंगे तो आपको आएगा यहाँ पे 0.196. क्या ये आंसर आपका करेक्ट है? नो, ये वैल्यू आपका करेक्ट है क्या? नहीं है. कितना होना चाहिए? बिटवीन 1 to 10. सो डेसिमल प्लेस यू हैव टू शिफ्ट बिटवीन 1 and 9, दैट इज 1.96. यहाँ पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, दैट इज 30. सो फोर्स इज अ मास ऑफ द सन. हमने मास फाइंड किया यहाँ से, देखो, कैन यू बिलीव दिस? यू कैन फाइंड द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सन फ्रॉम हियर. आप वहां पे बैठ के सन का मास निकाल सकते हो, आपको वहां पे वेट बैलेंस लेके जाने की जरूरत नहीं है. ओके, ये साइंस है, साइंस सब कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है. 1.96 into 10⁻30 kg. The mass of the sun is 1.96 into 10⁻30 kg is the mass of the sun. Copy it in notebook your or take the screenshot. Okay, guys. Next, previous example, assuming that bench on Mahindra is sitting frictionless, starting with the zero velocity. What will be Mahindra's velocity of motion towards the Virat after 1 second? Will this velocity change the time and how? Mass of Mahindra 75. Force is a 4.002 into 10⁻⁻7. जो कैलकुलेट किया था उसको हम यूज करेंगे और इसका वेलोसिटी फाइंड करने वाले हैं. वेलोसिटी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी होगा वो फाइंड करना है. क्या वो मूव हो सकता है, क्या ये पुल कर सकता है, ये फाइंड करने वाले हैं. तो वेलोसिटी के फॉर्मूला आपके पास जहाँ पे v इक्वल u प्लस at है, s इक्वल u2 प्लस हाफ at स्क्वायर. थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन जो v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as ये दिया है. अभी इसमें से आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन. गिवन क्या क्या है, देखो u है, t है और v फाइंड करना, तो फर्स्ट फॉर्मूला ही अप्लाई होगा. ओके, लेट्स अप्लाई द फर्स्ट फॉर्मूला. पुट द वैल्यू हियर. यहाँ पे फोर्स इक्वल मास इनटू क्या है एक्सेलरेशन है. अब फोर्स ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. एफ इज व्हाट 4.002 × 10⁻⁷ और एम इज आल्सो नोन हियर. पुट द वैल्यू हियर इन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. 75 कैंसिलेशन हो गया 0.8004 करके देखो, इतना ही आएगा. रॉन्ग नहीं है, राइट है. 0.16008 into 10⁻⁷. That is, this number is a 0.05336 into 10⁻⁷. A is equal to एज इट वैल्यू पुट कर सकते हो या डेसिमल इसको चेंज करो. 2 प्लस आगे लिया तो -2 हो गया -9. A is equal to v is equal to now u plus 80. v u is given 0 plus 80. A is equal to and t is equal to वैल्यू पुट करेंगे कितना आ गया 5.34 into 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड. कितना वेलोसिटी कम है देखो 5.34. फाइनल वेलोसिटी इतना ही होगा, यानी वो जगह से मूव होगा नहीं. वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम. as distance decreases force increase thereby increasing acceleration. velocity will increase with time. जैसा पहले 0 था, बाद में 5.34 10⁻⁻9 हो गया, लेकिन ये वेलोसिटी इतना नहीं है कि इसको पुल कर सके, मूव हो सके. Assuming that acceleration remains constant 5.34
जो आपने निकाला, लॉन्ग विल, हाउ लॉन्ग विल द महेंद्र टेक टू मूव 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स विराट इफ द स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कितना टाइम लेगा, टाइम निकालना आपको यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन कितना है 5.34 × 10⁻⁹ ये लिया। डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल वेलोसिटी लिया, ये थोड़ा फास्ट लेता हूँ आपको। यस, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट निकालना, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना आपको, वी स्क्वायर इज इक्वल, बाद में निकालें वी, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। यहाँ पे एस निकालना है, एस दिया है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर अपार्ट, आपको यहाँ पे टाइम निकालना है टी, टी स्क्वायर, यहाँ पे ये पूरा जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, हाफ इंटू 5 इंटू 10⁻⁹, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2.5 इंटू 10⁻⁹, और ये क्या हो गया जीरो, जीरो इंटू टी क्या होता है जीरो, प्लस है 2.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू टी स्क्वायर। अभी ये मल्टीप्लाई तो इस साइड क्या होगा डिवाइड होगा, राइट, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, 10⁻⁹ का प्लस 9 हो गया, और ये 100 इंटू 2.5 250, 250 को यहाँ पे डिवाइड करने के लिए यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल करो, या यहाँ पे 100 बना दो, या 1000 कर दो, यहाँ पे 1000 करेंगे 3 आएगा यहाँ पे माइ प्लस, सिंप्लीफाई करने के लिए 10⁻³ और 250, 1000 डिवाइड 50, 250 4 था 4 इंटू 10⁻⁻⁶, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 स्क्वायर इज 2 एंड 10⁻⁶ स्क्वायर रूट इज 10⁻3, यानी कि आंसर आ गया इसका 2 इंटू 10⁻³ सेकंड, यानी इतना टाइम लगेगा उसको, 2 इंटू 10⁻³ मीन्स 2000 सेकंड। The truck starts from rest and rolls downhill with constant acceleration. It travel distance 400 in 20 seconds. Find the acceleration and find the force acting on it. तो एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ये फास्ट लेता हूँ, गिवन है एक्सेलरेशन फोर्स निकालना है आपको, फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड काइनेटिक इक्वेशन एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, और फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, यहाँ पे एस वैल्यू पुट करो, यहाँ पे एस कितना दिया देखो ऊपर 400, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो, इंटू टी जीरो ही होने वाला है, प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ए वैल्यू अपॉन 2 इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, टी इज इक्वल 20 इंटू 20 स्क्वायर 400 चलेगा, तो ये 400 इज इक्वल टू ये जीरो हाफ इंटू 20 इन 20 400 हाफ कितने के 200 हो गया, 2 डिवाइड था यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट स्टेप किया है, तो 400 कैंसिल, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है तो क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या s raised to -2, यानी f is equal mass into acceleration, mass is given, acceleration you got above example in above, at a is equal to 7000 into 2 is 4000, sorry 14,000, and a truck moves with the acceleration of 2 meter per second square and force of acting on it is 14,000 Newton, right? Next is the acceleration to gravity. And capital G or small g. Capital G means gravitational constant, and acceleration to gravity is what is a small g. Small g 9.8 meter per second. Unit of the G. Capital G is a Newton meter square per kg square. And unit of gravity is what meter per second square. G, capital G not changes, but acceleration due to gravity is a change according to height, according to depth, according to place to place different है. On the pole G value different रहेगा, on equator G values are different, right? Is the difference between the capital G and small g. So building, look here, the boy throw the balls or let the ball from his hand directly fall on the earth. Why? Because of the acceleration due to gravity. This gravity pull this object. Acceleration is equal to change in velocity upon time. When he throwing the ball, that a velocity what is a 0, then they start increasing. This change in velocity पहले 0 था, बाद में increase हो गया. ये जब ground पे touch करा तो यहाँ पे maximum इसका क्या होगा velocity. When you throwing the ball upward, that time initial velocity क्या होता है maximum. When you reach at the high, then velocity what is a 0, high top या height maximum height पे पहुंचेगा तो क्या होगा उसका velocity कितना होता है 0. When it's falling down, that time velocity is increases. The gravitational force due to earth on body result in acceleration. This is called the acceleration due to gravity.
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीनिंग देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन, मीन एक्सेलरेशन मतलब उसका स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ना या कम होना, ऐसा गाड़ी का हम एक्सेलरेशन देते तो बढ़ाते ना, तो क्या होता है स्पीड बढ़ता है, स्पीड इंक्रीज होता है, यानी क्या हो गया वेलोसिटी में क्या हो गया चेंज हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया, चेंज इन वेलोसिटी कैसा विद टाइम, जैसा टाइम जाएगा वैसा वो वेलोसिटी क्या होता है चेंज, दैट्स कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो इसलिए गाड़ी का क्या उसका बोला है एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ाने के लिए उसका नाम दिया है एक्सेलरेटर। we know that force is equal to g into m1 into m2 upon r square. It's a man which is standing on the earth, mass of the earth is a m and mass of the man is a person is what is a small m, then this formula will be changed, क्या बनेगा देखो, f is equal to g into capital M upon capital R, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में यानी कि radius of the earth होगा, what is it is a radius of the earth. Also we know that Cf is equal to force is equal to mass into acceleration, that is a mass, force is equal to mass into acceleration means क्या हो गया weight, weight of person, उसका वजन, mass means not a वजन, mass means not a weight, it is a force, weight means force, force is equal to mass into what acceleration, acceleration means what is here small g, F is equal to m into what is a small g mg, equation number 2, equation 1 and 2 दोनों equal है, f is equal to g m upon r square, यहाँ पे f is equal to m into g, that's why we can write m into g is equal to g capital M into m upon r square, that is यहाँ पे small m क्या हो गया cancel, this is a small g is equal to g into m upon r square, this is a formula, perfect formula for the value of the g, g for acceleration due to gravity, कैपिटल जी और ये स्मॉल जी है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस स्मॉल जी इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, देखो यहाँ पे फॉर्मूले जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे बॉडी का मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड्स है क्या, इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास, वो ट्रक कितना है 100 kg का है, 1000 kg है, 500 kg है, एरोप्लेन है, कोई भी हो तो उसके लिए जी कितना होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, depends upon capital G 6.67 into 10 to minus 11, mass of earth, mass of ये सब कांस्टेंट है, तो G का वैल्यू भी क्या आना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए, राइट ना, लेकिन कभी कभी ये R क्या होता है चेंज होता है, तो जैसा R चेंज होगा वैसा ये भी वैल्यू क्या होगा चेंज, तो वैल्यू ऑफ द G डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द R, not depends upon the mass of the objects. Is it clear? Is it clear? Okay, yes. See the next. वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अभी अर्थ के ऊपर कितना रहेगा वो हमें फाइंड करना है, तो ये हो गया आर, जहाँ पे हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर निकालना है, आर वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶, मास ऑफ अर्थ इज 6.10 × 24, ऑब्जेक्ट के ऊपर जी वैल्यू डिपेंड्स नहीं है, जी वैल्यू स्मॉल जी डिपेंड्स अपॉन द जी एम एंड आर, कैपिटल जी कैपिटल एम एंड कैपिटल आर, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस अर्थ क्या रहेगा वो हमें फाइंड करना है, आपको पता है 9 में पढ़ा है आपने 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.78 इतना ही है, ठीक है, वो कैसा आया देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट किया 6, इसका स्क्वायर किया 6.4, 10⁶ का 12 हो गया, 10 to -11 24, यहाँ पे 10 का पावर ऊपर लो सब एक साथ हो गया, ये और ये 6, सिंप्लीफाई करना है, आ गया 10 to -11 24 और -12, ये दोनों हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिला आपको 40 इंटू 40.02 इंटू 10 इंटू 40.96, देखो -12 -11 कितना होगा -23 और 24 एक ही होगा 10⁻1 40.96 400/2, इसको हम कैंसिल करेंगे तो आपको 9.77 आ गया, दैट्स नियरली इक्वल 9.8 आ रहा है, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ द जी, ओके गॉट इट्स, नोट डाउन इन नोटबुक योर, फटाफट सब लोग बुक निकालो लिखो, ओके अब पढ़ने वाले हम वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ द जी, वैल्यू ऑफ जी कैसा चेंज होता है, कैसा चेंज मतलब व्हेन यू ऑन द इक्वेटर, जब हम इंडिया में हैं अमेरिका में जाएंगे या प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, प्लस हम इक्वेटर के ऊपर या पोल के ऊपर तो वैल्यू क्या होगा चेंज होगा, हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो भी उसका वैल्यू क्या होने वाला है चेंज होने वाला है, सो value of the change is a value of the g is a changes with the heights,
changes with the shape, changes with the altitudes, that is height, and what is the depth. ये तीन केस हम पढ़ने वाले हैं. Change along the surface of the earth, change along the altitude. Altitude मतलब पोल एनवर्ड से इक्वेटर पे क्या रहेगा उसका वैल्यू चेक करना है. अर्थ का हाइट जैसा बढ़ेगा वैसा. और डेप्थ, अर्थ के अंदर अंदर जाएंगे, जाने का नहीं आपको, अंदर जैसे जाएंगे, व्हेन यू गोइंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, देन वैल्यू ऑफ जी क्या होगा वो भी हम पढ़ने वाले हैं. पोल्स फ्लैटन है, अर्थ का इक्वेटर का सब बल्जिंग है, राइट. बल्जन है यहाँ पे होगा हुआ है. यहाँ पे फ्लैटन हो गया, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है क्या. यहाँ पे वैल्यू कितना 9.832 क्यों है, और यहाँ पे वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकंड क्यों है, ये आपको पढ़ना है. ये आपको एक्सप्लेन करने वाला मैं. चेंज विद हाइट, दिस इज एस्ट्रोनॉमर्स. अल्टीट्यूड इंक्रीज व्हेन यू गोइंग अपवर्ड्स, वैल्यू ऑफ जी व्हाट इज डिक्रीज. क्यों डिक्रीज होता है, ऐसा अंदर जाएंगे तो भी वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन सेंटर पे इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है. ये हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. पोल पे इसका वैल्यू कितना है 9.832, इक्वेटर पे कितना है 9.78. व्हाई, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ. व्हाई, बिकॉज ऑफ द फोर्स, सॉरी, वैल्यू ऑफ द जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इनवर्स जैसा डिस्टेंस ऑफ पोल और अर्थ का जो पोल है और अर्थ का इक्वेटर, अर्थ का सेंटर टू पोल डिस्टेंस कम है, distance decreases, value of g increase, and distance decreases, value of g is increase, and distance is increase, value of g is decreases. So on pole is a 9.832 and equator 9.78. Altitude increase, g decreases according to altitude, according to height. जैसा जैसा height बढ़ेगा, g is inversely proportional towards square of distance. Distance increase, value of g is decrease. Depth increases, g is decreases. Why? ये देखो डेप्थ यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है लेकिन जी डिक्रीज, बिकॉज मास उसका क्या हो रहा है, जैसा जैसा हम अंदर जाएंगे तो उसका मास भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है. ओके, लेट्स सी वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी. जी को 9.83 एट द पोल, 8.8 मीटर ऊपर पर जाएंगे, 9.8 हो गया, 36.6 पे जाएंगे तो कितना हो गया 9.77. और डिस्टेंस बढ़ेंगे सैटेलाइट जहाँ पे है वो डिस्टेंस कितना होता है 400, तो कितना हो गया 8.7 पे आ गया. देखो और ऊपर जाएंगे जो सैटेलाइट है यहाँ पे, ये कम्युनिटी सैटेलाइट है, उसके और ऊपर जाएंगे तो जहाँ पे डिस्टेंस कितना है 35,700 एंड 36,000 पे है. इसका हम डिस्कशन और हम लास्ट लेक्चर में करने वाले हैं यहाँ पे. साइंस वन जो लास्ट टॉपिक है वहाँ पे उधर भी डिस्कशन करने वाले हैं. जी इक्वल टू 0.22, बहुत कम होगा. देखो value of g is decreases 9.83, 9.8, 9.77 and 8.7. फिर कितना हो गया 0.225, कितना 35,700 किलोमीटर, मतलब 36,000 किलोमीटर पे इतना वैल्यू है, बहुत कम हो रहा है वैल्यू ऑफ जी. Altitude increase, g decrease. Got it? Variation in value of g. g is equal to gm upon r square. अभी यहाँ पे जाएंगे, ये बाहर का स्पेयर है, इधर से हम इधर आए, देखो लेजर पॉइंट यार, ये अर्थ पहले था तो अर्थ का मास का ज्यादा ग्रेटर था. अभी अर्थ का मास कितना हो गया, इतना हो गया, कम हो गया. मींस एज द डेप्थ डिक्रीजेस मास आल्सो डिक्रीज. वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स अपॉन मास एज वेल एज आर. मींस मास भी डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ द जी इज डिक्रीजेस. आप यहाँ पे सेंटर पे आओ, मास कितना होगा 0, डिस्टेंस भी कितना होगा 0, तो जी कितना होगा 0. दैट्स व्हाई एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सलेशन टू ग्रेविटी इज व्हाट 0. समझा समझा समझा. ओके गुड. एम डिक्रीज, मास डिक्रीज, जी डिक्रीज. और देखो और नीचे जा, देखो बच्चा अंदर अंदर जा रहा है, अंदर सेंटर पे जा रहा है, राइट. तो और वैल्यू क्या हो गया डिक्रीज. एम इज 0 एट द सेंटर, तो वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर. वैसा तो उसका डिस्टेंस भी कम होने वाला है. Here I explain its
your lecture. Now I am going to stop here your lecture here. So all of you guys, listen. You have to work hard at your homes. Okay, at your home start to do hard works. Any point आपको यहाँ पे कोई explain नहीं अच्छे से नहीं समझ में आया तो आपको back करके उसको अच्छे से देख लेना. So little bit here error. So I stop it and lecture to complete here. And next lecture will be explain it in more. So now till now you have to do hard works, practice at home. Okay, bye. See you again.